So, good morning, student. Good morning, all. So, last class we discussed about the human structures, the different human structures, digestive system. And today we start the word respiration. I already told the last class that is the definition of respiration. The respiration means the process by which food burned in cell at the body with the help of oxygen to release energy. To release energy, that is called respiration. And where the energy are stored, the energy stored in ATP store, and this energy are utilized by the body by the process of respiration. So let's know how many type of respiration. So today's class start with that. So the type of respiration are two type of respiration. One is aerobic respiration, another is the anaerobic respiration. तो respiration दो तरह का होता है. One is the aerobic, another is the anaerobic. So let's bring up aerobic. Aerobic respiration means those respiration which takes place in the presence of oxygen. जो oxygen के presence में होता है, that is called aerobic respiration. And in aerobic respiration, it produces more energy. The end product is are what are the end product of aerobic respiration? Carbon dioxide, water, and energy. There are three and the product of that: carbon dioxide, water, and energy. And it all done the what happened in the presence of oxygen. First, in the presence of oxygen, the glucose form into pyruvate, and the pyruvate again presence of oxygen to form the what? Carbon dioxide, water, and energy. So this process, whole process is called the what? That is aerobic respiration. You can remember through this equation. Equation से आप याद रखेंगे तो easy होगा. So what is aerobic respiration? Those respiration which takes place in the presence of oxygen, that is called aerobic respiration. That is called the what? Aerobic respiration. Hello? Okay, that is the respiration means that is the aerobic respiration, those respiration which takes place in the presence of oxygen, and that is fast the glucose convert into the pyruvate, then pyruvate to form the what? Carbon dioxide, water, and energy, that is called respiration. So one student is joined now, so that's why it is. Hello, hello. Beta, what's your name? अपना अनम्यूट बटन करो, then you can listen me and you can tell me. म्यूट करके अपना बात करो और अनम्यूट करके बताओ आंसर. आपका नाम क्या है? मैं यहाँ पे चेंज करूंगी, आपका नाम नहीं है सही से यहाँ. हेलो. यस, व्हाट्स योर नेम? नेम बताओ अपना. व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? ओके, लिसन. हाँ, यस, व्हाट्स योर नेम? चेंज योर नेम देयर. अपना नाम वहाँ पे चेंज करिए, अपना नाम लिखिए वहाँ पे क्या है, या फिर बताइए हम चेंज कर. क्या नाम है आपका? हेलो, आपका नेम बताइए और ओल्ड रोल नंबर बताइए. नीरज मौर्य. हाँ, क्या नाम है? नीरज मौर्य. नीरज मौर्य. ओके, मैं यहाँ पे आपका नाम चेंज कर रही हूँ. यहाँ पे कुछ दूसरा कुछ लिखा है, इसलिए मैं चेंज कर रही हूँ. वेट देयर. नीरज मौर्य ना.
Yes, miss. नीरज मौर्य, ओके। पुराना रोल नंबर, ओल्ड रोल नंबर कितना था? रोल नंबर मिस 4 था। 4, ओके। ओके, देखो मैं यहाँ चेंज की हूँ, आपका चेंज हुआ? यस मिस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आप अपना अनम्यूट कर दीजिए, अब अपना बटन अनम्यूट कर दीजिए और लिसन इन द क्लास। वीडियो नहीं आ रहा है मैम। वीडियो नहीं, जरूरत नहीं है, मैं हूँ वीडियो ऑलरेडी हूँ, मैं आई एम प्रेजेंट हियर, मैं प्रेजेंट। ठीक है मैम। ओके, देख लो फिर, तो तुम्हारा डाउट हो रहा है। यस, हो गया? यस मिस। यस ओके, मिस। लेट्स ज्वाइन। ओके, सो टुडे आई डिस्कस अबाउट द एरोबिक रेस्पिरेशन। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे द रेस्पिरेशन डेफिनेशन and also the digestion also learn that last class. So today we'll learn the word the type of respiration. क्या पढ़ेंगे? Type of respiration. The type, Respiration. yes, type of respiration are two type. One the aerobic, another is the anaerobic. One is the aerobic, another is the anaerobic. So aerobic, Anaerobic. yes, aerobic respiration किसे कहेंगे? Those respiration which takes place in the presence of oxygen. तो oxygen presence में जो respiration होता है इसे कहते हैं aerobic respiration. And that respiration produce last product is the what? Carbon dioxide, water and energy. The last end product of aerobic respiration is the carbon dioxide, water and energy. तो आप लोग जो फूड लेते हैं डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड लेते हैं, दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होगा? आपका फूड स्टार्च मटेरियल है, तो ये ब्रेक डाउन होके पहले किसमें कन्वर्ट होगा? पायरुवेट। then pyruvate to convert what? The carbon dioxide, water and energy, and that process is called the what? Aerobic respiration. ये सारा किसके प्रेजेंस में हो रहा है? प्रेजेंस ऑफ Aerobic ऑक्सीजन। respiration. yes, yes, in the presence of oxygen, so it is called aerobic respiration. Now come to the second part, anaerobic respiration. Anaerobic means N means not, that is the absence of oxygen. ये सारा रेस्पिरेशन होता है, बट द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एनोरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है, एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ हुआ इन द प्लेस ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट में क्या होगा? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड एनर्जी। जैसे एरोबिक में था, एंड प्रोडक्ट क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। और इसमें एनोरोबिक में लास्ट प्रोडक्ट किया हुआ लैक्टिक एसिड एनर्जी। जैसे आप लोग का जब भी आप लोग के बॉडी में कभी पेन होता है कन्वर्टेड, तो क्या होता है? वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। रेस्पिरेशन मसल सेल, जी आपका मसल सेल में जो ग्रोथ होता है वो किसकी वजह से? ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड एंड द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्ट टू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, तब आपको एनर्जी होता है। तो ये आपका किस में होता है? इन केसेस ऑफ मसल सेल में। बट इन द एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ईस्ट, ये तो दिया ह्यूमन बीइंग में, हायर एनिमल्स में किस तरह एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। बट इन केसेस ऑफ ईस्ट, ईस्ट इज द लोअर ऑर्गेनिज्म, व्हाट हैपेन? ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट and in the absence of oxygen pyruvate is converted to ethanol, carbon dioxide, energy. आपको पता है वाइन, जो पता है लास्ट में जो फॉर्म होता है वाइन, इथानॉल। इथानॉल कैसे फॉर्म होता है? फ्रॉम द स्टार्च, जो ग्लूकोज दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में किसमें कन्वर्ट होगा? पायरुवेट। एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट प्रेजेंट में वो किसमें कन्वर्ट कर देगा? इथानॉल। इथानॉल का सिंबल क्या है? पता है इथानॉल का सिंबल? बताओ तो। नहीं मैम। नहीं पता तो C2H5OH, आपका इथानॉल का सिंबल याद रखिएगा, बहुत बार आता है क्वेश्चन। C2H5OH इथानॉल का सिंबल, ठीक है। इथानॉल फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ये फॉर्म होता है इन ईस्ट केसेस में, लोअर ऑर्गेनिज्म में। और हायर ऑर्गेनिज्म में एंड प्रोडक्ट क्या हुआ? लैक्टिक एसिड और एनर्जी। लोअर ऑर्गेनिज्म में एंड प्रोडक्ट क्या हुआ? इथानॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। तो एनर्जी। यस, दोनों केसेस में आपको लास्ट में एनर्जी ही फॉर्म होगा। रेस्पिरेशन का काम क्या है? जो आपको एनर्जी मिलता है, जैसे आप लोग खाने के बाद आप लोग को जो पाचन होता है, आप लोग को एनर्जी कहाँ से मिलता है? फ्रॉम एयर। तो यही हम लोग आज पढ़े। तो आज हम पढ़े रेस्पिरेशन टाइप्स, ओके। तो लेट्स नोइंग दैट अगेन मैं रिपीट और करेंगे। मैम यस, और कोई ज्वाइन है क्या? नहीं, अब जो जॉइन नहीं, आकाश आ रहा था चला गया, उसका शो कर रहा था, नहीं हो रहा है। सब सारे दोस्त को तुम लोग ज्वाइन करो 8:30 में। 8:30 में ऑल शुड ज्वाइन इन द क्लास। डेली? हाँ, डेली रेगुलरली। आप लोग 8 बजे तक अपना काम खत्म करके अपना बैठ जाइए, और 8:30 से शुरू हो रहा है क्लास, ज्वाइन करिए। और उसमें जो जो पढ़ाया जा रहा है उसका होमवर्क भी दे रही जी हूँ, उसका नोट्स भी दे रही हूँ। आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ पाओगे, अच्छा लगेगा क्लास में, ठीक है? ठीक है। ओके।
तो मैं आज में पढ़ाई सिर्फ रेस्पिरेशन कैसे कल होता है, दैट इज द एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दैट फॉर्म द वर्ड एटीपी, और एटीपी द एनर्जी, ये एनर्जी फॉर्म होता है बाय द रेस्पिरेशन में। और रेस्पिरेशन आपका दो तरह का है, एक एरोबिक और एक एनरोबिक। एरोबिक किसे कहेंगे, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है एनर्जी फॉर्मेशन, दैट इज एरोबिक, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, दैट इज कॉल्ड एनरोबिक। एरोबिक का एंड प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एनरोबिक जी प्रोडक्ट क्या है, लैक्टिक एसिड, एनर्जी, इथानॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये है आपका एंड प्रोडक्ट ऑफ एनरोबिक। तो ये हम लोग पढ़े दोनों ये में। तो हम लोग इसमें क्या है, ब्रेक डाउन ग्लूकोज बाय वेरियस मेथड। ग्लूकोज देखो, आप लोग जो खाना खाते हैं ग्लूकोज, वो कितने वेज में आपका ब्रेक डाउन हो रहा है, एक है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट में किस तरह से ब्रेक डाउन हो रहा है डिफरेंट वेज में। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आपका माइटोकॉन्ड्रिया में क्या कन्वर्ट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मसल में वही पायरुवेट किस में कन्वर्ट हुआ, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। वही ग्लूकोज पायरुवेट कन्वर्ट होने के बाद एब्सेंस ऑक्सीजन ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म में क्या कन्वर्ट हुआ, इथानॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी फॉर्म हुआ। तो आज मैं ये इतना तक पढ़ाती हूँ, कल मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगी। आप लोग आने ज्वाइन करने में लेट हो गया है, सो नेक्स्ट क्लास। ठीक है मिस।